'Tis the season to be a baddie. So, hello baddies, my name is Marsha Balani and you know me better as Divinity by Maya. अब देखो मेरी जान, आज हम शुरू करने वाले हैं विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जनरली मेरे वीडियोस में टॉपिक होता है और इंस्टाग्राम वीडियोस में टॉपिक होता है, विल दिस पर्सन कॉन्टैक्ट यू इफ दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, are they interested in being in a relationship, if this is an old relationship or there is something complicated over there, will this person want to reconcile. लेकिन आज हम कुछ अलग भी इसमें ऐड करने वाले हैं, that is if this person could say something to you, what would it be and what is the spirit guidance about this connection. So let's get started and I'm pretty sure I'm saying that for the third time now. ठीक है, so शुरू करते हैं by picking up piles. The two piles today are peacock and fox. तो आपको एक चूज करना है, you have to choose peacock or you have to choose fox. So I will give you 5 seconds. Take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5. And peacock or fox. तो जो भी आपके दिमाग में पहले खटका वही आपका पाइल है. शुरू करते हैं पीकॉक के साथ because beautiful things have a privilege. Pretty privilege, please. Okay, so if you chose peacock, I first want to know, I want to ask my deck, who is this person? Who is this person that this viewer needs to know about? Let's see. Okay, so I think that this is a person with whom you share a very, very strong attraction. This person and you, I think that ये एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जब कहीं आप दोस्त थे या कहीं आप कॉलीग्स थे या फिर अगर था भी तो आपने कभी वो फॉर्मल बाउंड्रीज महसूस ही नहीं करी. शुरुआत से ही आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था. बट यहाँ पे एक छोटी चीज ये भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो समवन और अ कनेक्शन वेयर यू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री. यू लुक एट दिस पर्सन एंड दिल में लड्डू फूटा, बट नॉट जस्ट इन अ रोमांटिक वे बट इन अ वाइल्ड craving sexual kind of way, right? And there's a very strong attraction. Now what else? क्या ये सिर्फ एक physical या sexual attraction है या फिर आपके बीच में कुछ और भी है? This can also be a very new relationship. So if you're talking about a crush or you're thinking about a crush, this can be someone who's very relatively new in your life, right? The second thing is that this is a person where अगर आपकी बात नहीं हो रही है, it's simply because one of you decided that this relationship is not doing us good. या फिर आप दोनों में से एक को इस बात का बार बार शक था कि क्या ये relationship actually अच्छा है. This is someone who's more mature in the relationship. Was this person you or was this person them who chose to walk away? I do think that this was you, and I feel that the problem here is one of you feels that the long term possibility is not there. Probably you, या फिर आपको इस बात का पूरा अंदाजा था कि long term possibility यहाँ पे बनना मुश्किल है. जब ये कार्ड आता है तो एक possibility ये भी होती है that this is someone who's a bit different. This could be a caste difference, this could be a religious difference. In my psychic download, I definitely feel that this has something to do with a religious difference, with a caste difference, basically a societal difference that makes it very hard for the two of you to be together. This could be an age difference also. Somebody could be divorced or somebody could have had more relationships than the other, maybe really bad experiences. What else? I also think that one of you is डेफिनेटली मोर ईगोइस्टिक. यहाँ पे एक ईगो भी एक रोल प्ले करता है. एक ने दूसरे को बोल दिया दैट दिस माइट नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म और दिस माइट नॉट वर्क द वे वी वांट, एंड दूसरे वाले बंदे ने ये बहुत ज्यादा ईगो पे ले लिया है दैट क्यों नहीं भाई, क्यों, अच्छा ठीक है तूने बोला कि दिस विल नॉट वर्क आउट, अब नहीं बात करेंगे. इफ यू आर नॉट गोना रीच आउट टू मी, आई एम नॉट गोना रीच आउट टू यू. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द टू ऑफ यू आर नॉट स्पीकिंग, बिकॉज़ देयर इज अ ईगो थिंग. One eternity later. Wow, call break. Okay, so this is definitely a ego problem. Okay, this person has made it very abundantly clear. See, you left me or I left you. They don't care if you were the one who left or they were the one who left. The problem is this person's like, I'm not gonna reach out to you. You know why? Because my ego is big. This person's got a big ego, okay? And I definitely feel that even though this particular suit definitely represents fire signs in most reading, according to me, this should be a person who has at least one Capricorn placement. This could be a Capricorn placement, this could be an Aquarius placement, this could be someone who's very Rahu dominated, this could be
Mulang Bhagyang 4. This could be a Rahu in the first house person. This can be a Saturn in the first house or Mulang Bhagyang 8 person. This can also definitely be someone who has a lot of father wounds. Maybe they did not share a great relationship with the father or a very great relationship with the family. Their mother could have struggled a lot. और क्या बता सकती हूँ मैं आपको इस इंसान के बारे में? Let's see. And also this is someone who has a very weird relationship with God. I would not say that this is a person who has surrendered, but in some way this person can always have the complaint कि भगवान मेरी वैसे नहीं सुनता जैसे तुम्हारी सुनता है, या फिर भगवान मेरी वैसे नहीं सुनता जैसे बाकी लोग की सुनता है. Somewhere this person feels that religion has not been fair to them or God has not been fair to them. So there is definitely that particular thing over there, and I do feel that this person has been betrayed many times in their lives. इस बात की ये भी possibility है कि इनके birth date में number 2 बार बार आता हो. वो month में हो सकता है, वो year में हो सकता है. But this is definitely a person who has faced many betrayals in their life. और कहीं ना कहीं अब ये उस जगह पे उतर आए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये भी बोला होगा कि मैं इतने धोखे खा चुका हूँ या इतने धोखे खा चुकी हूँ कि अब शायद किसी और को धोखा देने में भी मुझे बुरा नहीं लगे, या फिर हो सकता है कि अब मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ कि मैं दूसरे लोगों को धोखा दूं. सो दिस इज डेफिनेटली समवन वेयर यू नो दैट साइकिल, द abused becomes the abuser. That is what's happening with this person, and somewhere that could also be the point of contention between the two of you. आपको इस बात पे शक जरूर होगा, आपको डिलेमा भी हुआ होगा कि इन सब चीजों के बाद, इन सब चीजें जो मैं इस इंसान के बारे में जानता हूँ या जानती हूँ, क्या उसके बावजूद मुझे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए? यानी कि आप कहीं ना कहीं शक में पहले पड़ चुके हो, आपको इस बात पे पहले शक हो चुका है कि क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है, क्या ये इंसान मेरे ट्रस्ट के काबिल है. ये स्पेशली आपको बार बार लगा हुआ कि यार अच्छा तो है, मैं प्यार तो करता हूँ, ट्रस्ट भी करना चाहता हूँ, पर क्या ये ट्रस्ट के काबिल है? क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? क्या ये पर्सन रिलायबल है? तो कहीं ना कहीं बार बार इस रिश्ते पे शक होना लाजमी है आपकी तरफ से. नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक. क्या ये इंसान आपसे बात करेगा? क्या ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? अगर ये एक नया रिश्ता है तो क्या ये आपके लिए इनिशिएटिव लेंगे? आइए देखते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये मुझे लगता है राइट नाउ दिस पर्सन हैज गॉट अ लॉट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मुझे यहाँ पे लेटर्स STU भी बहुत रिलेवेंट दिखते हैं, लेटर K भी हो सकता है, लेटर P भी हो सकता है, आपका या इनका ये इनिशियल हो सकता है. और मुझे लगता है दैट दिस कुड बी वेरी रिलेवेंट. नॉट नेसेसरी ये आप सबके लिए ये इनिशियल्स मैटर करते हो, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू दीज इनिशियल्स कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. आई फील दैट दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कहीं ना कहीं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये 13 की टेंशन लेते हैं, ये 15 की टेंशन लेते हैं, 20 की टेंशन लेते हैं. यानी कि अपने दिमाग में ये बहुत थक चुके हैं. दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द माइंड. ओके, एंड नाउ यस आई डू थिंक कि अगर आप इनके साथ ऑनेस्ट थे, यानी कि अगर ये जानते हैं फॉर अ फैक्ट कि बाकी लोग जिन्होंने इन्हें इनकी जिंदगी में धोखा दिया है, अगर आपने इन्हें धोखा नहीं दिया है, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, आपने अगर माइंड गेम्स नहीं खेले हैं, तो यस दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू फॉर श्योर. अगर इन्हें लगता है कि आप सिंसियर हो, आप जेन्युइनली इनके लिए वो फीलिंग्स रखते हो, चाहे आप इनके अंदर इंटरेस्टेड हो, उनसे प्यार मोहब्बत कर सकते हो या कोशिश कर रहे हो, तो हाँ, एक नए रिलेशनशिप में भी दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक एन एफर्ट्स फॉर यू. बट दिस कार्ड लिटरली ऑलवेज सेज दैट यू विल गेट what you give, what you sow you shall reap. राइट, तो अगर आपने इनके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो जरूर चाहते थे कि बंदा थोड़ा तो जेलस हो मेरे ऊपर, ठीक है, या मेरी वजह से थोड़ा सा तो जेलस हो, थोड़ी जेलसी दिखाए, थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखाए. तो अगर ये माइंड गेम्स आपने खेले ना, तो थोड़ा भूल जाओ, तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट आना. लेकिन हाँ, बिल्कुल भी माइंड गेम्स नहीं खेले हैं, बिल्कुल सिंसियर हो, बिल्कुल आपने इन्हें शिद्दत दिखाई है, सिंसियरिटी दिखाई है, तो यस this person will reach out to you if this is a complicated relationship, even if this is a no contact, this is a no contact reading for you. If this is a new person reading for you, if this is a crush reading for you, then yes, this person will make an effort for you. What else do you need to know about this person in this regard? I feel like this is something that you need to strongly manifest, because इसके साथ देखो क्या कार्ड आया है. ये कार्ड बहुत कम आता है. अगर आप यहाँ पे जेन्युइनली चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे, एक पॉजिटिव हार्ट से आप चीजें सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और यस अगेन अगर आपका यहाँ पे सच में सिंसियरिटी है, सच में डेडिकेशन है, देन यस दिस पर्सन विल ऑल्सो बी विलिंग टू कमिट टू यू. दिस कैन टेक सम टाइम. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन टेक 7 months, for some of you this can take up to 1.5 years, but yes, this person does have the potential to commit to you.
to contact you again, to make an initiative for you, but again you have to be very sincere. अगर आप इस रिश्ते में sincere हैं, dedicated हैं, तो वो सामने वाले से भी आपको definitely मिलेगा. अब देखते हैं कि स्पिरिट गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए. लेट्स सी, लेट्स डू द फाइनल पुल फॉर माय पाइल पीकॉक. Take a leap of faith. So spirit really says, take a leap of faith. Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. पर उसके साथ साथ ये भी है, keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones that open for you. So दोनों जगह, पहली बात तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि पहले वाले रिलेशनशिप्स अगर मेरे वर्कआउट नहीं करे, पहले वाले कनेक्शंस वर्कआउट नहीं करे, तो ये वाला क्यों करेगा, है ना. बट नहीं, ये मेंटालिटी आपने नहीं बनानी है. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन possibilities. अपना दिमाग खुला रखो. Be open-minded to possibilities. And also this particular card has caught my attention. True love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. So congratulations, Pile Peacock. If you resonated with this particular pile, then I want you to comment in the comment section. Tell me which pile did you choose. If it was Peacock, what are the things that you resonated with? और present tense में लिखिए कि आप इस इंसान के साथ क्या ending चाहते हैं. I want to be married to X, Y, and Z. I am in a relationship with X, Y, and Z. And I will definitely send you my many blessings and positive wishes that I hope that this comes true. अब बात करते हैं pile Peacock की. So if you chose the second pile, Spirit, tell me, who is this person जिसके बारे में मेरा व्यूअर जानना चाहता है. Let's see. See, if I had to talk about this person, मुझे लगता है that this is definitely someone who was already interested in stability and commitment with you. इन्हीं शुरुआती दिनों में इन्होंने खुद आपसे बात की होगी about stability, about commitment. ये बहुत क्यूरियस थे आपको एक अच्छे समय तक जानने के बावजूद. कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड इस बात में भी थे कि क्या आप सिंगल हैं, क्या आप किसी को डेट करिए. लेकिन बहुत कोशिश की होगी इन्होंने ये जानने की कि अभी सिंगल हो कि नहीं, अवेलेबल हो कि नहीं, मुझ में इंटरेस्ट दिखाओगी या फिर नहीं. उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे ये है that this is someone who was actually very apparent with their romantic feelings, but also someone who is very shy. यानी कि मुझे इनसे एक बहुत बोल्ड, courageous, impulsive energy नहीं नजर आती. And this is also something that is a slow burn romance, यानी कि ये चीजें वक्त के साथ खुल के आई हैं. और उसके बावजूद मैं ये भी देख सकती हूँ that not just this person has a focus on you. इसके अलावा ये अपनी खुद की जिंदगी में भी बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं. कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम करते हैं which is related to manual labor. The psychic download that I'm getting, not related to this, but this person could be someone who trades, has a very strong interest in the stock market, real estate या construction से related कोई काम में interested हो सकते हैं. इसके अलावा this person could have a small physical deformity, but I do think that overall this person is really beautiful, could get along with a lot of women. अगर फीमेल दोस्त ज्यादा नहीं है तो अपने घर की औरतों के साथ, यानी मम्मी के साथ, बहन के साथ बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं. उसके अलावा आई डू थिंक दैट दिस पर्सन कुड हैव सम हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स. हार्ट से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, जल्दी गुस्सा आना, बीपी बढ़ जाना ज्यादा या फिर लो हो जाना, ये चीजें इनके बाद हो सकती हैं. एंड अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सी दैट दिस पर्सन suggested stability themselves. यानी कि शुरुआती दिनों में आपको कोई भी डाउट नहीं था, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं थी. आपको हमेशा लगा कि ये इंसान बहुत सीरियस है आपके बारे में, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखता है या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में एफर्ट्स डाल रहा है. बट क्या ये एक्चुअली आपके साथ वो एफर्ट्स डाले, क्या आपको अब भी ऐसा महसूस होता है? सो आई डोंट थिंक दैट दैट्स ट्रू. आई डू थिंक दैट इस वक्त जो मैं देख सकती हूँ, आई बिलीव दैट आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई, राइट, दिस पर्सन हैड अ वेरी नेगेटिव आउटलुक अबाउट इट. यानी कि शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा स्टेबल थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे, आपको लगा कि यार ये एक बहुत मेच्योर आदमी है, बट अंदर से ये इंसान ना एक बच्चे की तरह है. दिस इज अ पर्सन हु इज लाइक अ चाइल्ड, एंड दिस इज ऑल्सो समवन who again and again feels that this is not going to work out. यानी इन्होंने पहले शुरुआत में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत सपने देखे, आपको दिखाए भी. दिस इज नॉट समवन हु जस्ट मेड बोल्ड प्रॉमिसेस. यानी कि तब भी इनके मन में कहीं ना कहीं एक शक हो सकता है जो उन्होंने आपको भी जाहिर किया हो कि आई एम नॉट श्योर, यस आई डू रियली वांट टू डू. यानी कि इन्होंने हमेशा आपको ये तो
प्रॉमिस किया और ये भी बोला कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सीरियस हूँ, बट आसपास के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से पता नहीं था कि चीजें वर्कआउट करेंगी कि नहीं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चीज ये भी हो सकती है आप दोनों में से किसी का पेरेंट जो नहीं मान रहा हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है किसी के पास, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हैज गॉन इनटू अ वेरी नेगेटिव मोड दैट ही कंप्लीटली बिलीव्स और शी कंप्लीटली बिलीव्स दैट चीजें यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगी, और इसलिए कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और ये आज भी आपके साथ वो चीजें चाहते हैं जो पहले चाहते थे, लेकिन इन्हें पता है कि कांटेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, इन्हें दुख होगा, इन्हें दर्द महसूस होगा, क्योंकि आपके साथ ये रहना चाहते हैं पर उसके बावजूद आपके साथ रह नहीं सकते, आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं चला सकते जो ये सच में आपके साथ चलाना चाहते हैं। जो इमोशनल बॉन्ड इनका आपके साथ है, आई डोंट थिंक दिस पर्सन कैन सी यू विद समवन एल्स, एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स दैट tomorrow you will marry someone or be with someone else or be in a relationship with someone else and they cannot see it, you know, ये वो नहीं देखना चाहते, वो नहीं देख सकते, इन्हें ऐसा महसूस होता है। एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि एक नई शुरुआत की जरूरत है आपको भी और इन्हें भी। हो सकता है आपसे मूव ऑन करने के लिए भी ये किसी के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, वहां मन नहीं है पर फिर भी मन मार के भी किसी के साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। या आपकी जिंदगी भी हो सकती है जहां आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास लोग आपको पूछते हैं, लोग आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे हो। वॉट इज द एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन नाउ, लेट्स सी आपके बीच में चीजें इस वक्त कैसी हैं। See, I do think that यहाँ पे some things were said and done, यानी कि एक तरीके से इस चैप्टर को विराम लग चुका है, पूर्ण विराम लग चुका है। आप में से एक इंसान तो एक्चुअली पूरा क्लोजर दे चुका है कि देखो हमारा कुछ नहीं हो सकता, वेरी क्लियर, वेरी टू द पॉइंट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है दैट ये चीजें जो कही गई है ना, ये टू द पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर इनमें इमोशंस की कमी है। जो इमोशंस आप फील कर रहे हो और जो इमोशंस वो फील कर रहे हैं, आपको इस बात का पूरा अंदाजा है दैट दिस पर्सन फील्स फॉर मी way more emotionally and I feel for this person way more emotionally than what was said and done। यानी कि जो चीजें कही गई थी ना, वो they don't even scratch the surface because there's so many emotions, there's so many feelings that you have for them, they have for you, but you know for a fact कि वो चीजें नहीं कही गई। जो चीजें कही गई वो एक छोटी समरी थी, और जो चीजें आप कहना चाहते हो वो you know what was said was just a bowl of water and what you want to say is like a vast ocean, you know, arrogance ये जो तुम कहना चाहते हो, ओके। और जो तुम सुनना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तुम्हें क्लोजर मिल चुका है, तुम्हें पता है कि क्लोजर मिल चुका है मुझे, अब क्या पूछूं, क्योंकि सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि हर पॉसिबल सवाल का जवाब तो इंसान दे चुका है। बट तुम्हारे मन में एक्चुअली जो सवाल है ना, वो सवाल ये है दैट डज दिस पर्सन स्टिल केयर, इज देयर स्टिल समथिंग बिटवीन द टू ऑफ अस जो कि वर्कआउट कर सकता है। So let's see, will this person contact you and is there still something? So is there still something? Potential है, but उस potential को रियलिटी में बदलने के लिए ना तुम दोनों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो इस रिश्ते के लिए नहीं। यहाँ पे रिश्ते में एफर्ट नहीं डालना, रिश्ता तुम्हारा बन जाएगा, और तुम्हें खुद में एफर्ट डालने की जरूरत है, यानी कि खुद के ऊपर काम करो और इस इंसान से कहो कि वो अपने ऊपर काम करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम ये उनसे कह नहीं सकते कि अपने ऊपर काम करो, और ना ही तुम खुद पे काम कर पा रहे हो। सो दीज आर टू इंडिविजुअल्स हु लाइक ईच अदर, हु आर इनटू ईच अदर, बट कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में उस फेज पे नहीं हो जहां आप हील्ड हो या फिर ये हील्ड है। The two of you need a lot of individual healing in order for this relationship to work out. And will this person be open to healing? I do think इन्हें एक नया रिश्ता चाहिए, इन्हें डेफिनेटली एक नया रिश्ता नहीं, एक्चुअली एक नया स्टार्ट चाहिए अपनी जिंदगी में, बट आई डोंट थिंक दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग दिस रिलेशनशिप। यानी कि इन्हें ये आपके बारे में सोचते भी हैं, अगेन यहाँ पे फीलिंग्स हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में एक नया स्टार्ट भी चाहिए, उस नए स्टार्ट के लिए इन्हें प्रॉस्पेक्ट्स भी मिलेंगे, बट this person is not focused on making this work. So unfortunately the feelings are very intense, but I don't think that this person is going to make the effort to make this relationship work. Will this person contact you though? Let's see. अगर आप इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचते हो, बहुत मैनिफेस्ट करते हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन आपको अपनी खुद की जिंदगी में हीलिंग की जरूरत है। खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो, बी इन योर एम्प्रेस एनर्जी इफ यू आर अ मैन, be in your divine energy for this person to contact you, but this person will only contact you
and by the time they contact you, you will already be healed, bro. You will already have been such an upgraded version of yourself that I don't think that it will matter much then. And now let's see, what does spirit have to say about this particular connection then. Let's see. The first one is balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. That balance is missing, huh? Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, but perhaps you're just perhaps too dependent on each other. Maybe sometimes it's not really love, it's attachment, it's intense attachment. I'm not saying that the love is completely absent, but it's that intense attachment that you have with the two of each other that you're like, isse mein move on nahi kar sakta bhai. But at the same time, one more thing that the spirit has to say for you: pay attention to signs. There are synchronicities you have not been noticing. Yes, so those were the readings. If you were pile peacock or if you were pile fox, please tell me in the comments which pile did you choose, if this video resonated with you, and what should be the prompt for my next tarot reading video. In case you want to get a personal reading with me, then there are links in the description. In case you already don't follow me on Instagram, then this is my username, and of course you can find the link in the description. I hope that you had a lovely reading with me, and in case you have another question, or if you have a question about this particular reading, then please ask me in the comments and I'll be very glad to answer them.